dear students, welcome back in the chapter The Need for Laws and the Constitution. In the last video, we have come to know about the needs of law and the Constitution. You know, students, India attained independence from the British rule on 15th August 1947. And this attainment of independence brought a new responsibility for the Indian. That was the responsibility to govern the country. So Indian had to choose that rules and regulation by which country could be run in a smooth manner. So that is the part of the constitution. So what is constitution? Constitution is a set of rules and regulation by which country runs in a smooth manner. So today we are going to take the topic Preamble to the Indian Constitution. What is the preamble to the Indian Constitution? And after that we will study laws of descent. And under this we will take two laws to protest salt satyagraha, after that anti-liquor agitation. So let us come to know what are these. Preamble to the Indian Constitution. Student, first of all, you have to know what is the meaning of preamble. Here, preamble means introduction, introductory part of the Constitution. The preamble of the Constitution gives an insight into the objectives and principles which were desired to be achieved through the making and implementation of the Constitution. जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें जो है हमें जो हमने सोचा था, जो हमें अचीव करना था, उसमें सारे उसके ऑब्जेक्टिव्स और प्रिंसिपल सिद्धांत दिए गए हैं. That's why some constitutional commentators have called it to the key of the constitution. संविधान की इसको कुंजी का है. मिरर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मिरर, आईना बताया है. सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा बताया है. और पॉलिटिकल होरोस्कोप और राजनीतिक होरोस्कोप में जन्म पत्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि संविधान की जन्म पत्री के रूप में, आईने के रूप में, जन्म कुंडली के रूप में, आत्मा के रूप में हम प्रियम्बल का वर्णन करते हैं, प्रस्तावना के बारे में बताते हैं. द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत को क्या घोषित किया गया है कि संप्रभु है, सामाजिक है, सेकुलर धर्मनिरपेक्ष है, प्रजातांत्रिक है और गणराज्य है. तो इन चीजों से हमने प्रस्तावना की इंट्रोड्यूस किया है. फर्स्ट इज सोवेरियन स्टेट. सोवेरियन मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवेरियन? Here, sovereign means that we are free to decide our internal matters as well as external matters. Students, you know, आज़ादी से पहले भारत जो है ब्रिटिश के अधीन था, तो वह अपना कोई भी फैसला नहीं ले पा सकता था, उसकी अपनी गवर्नमेंट नहीं थी. लेकिन as we got independence, जैसे ही हमने आज़ादी पाई, we were free to take any decision. We were free to make our government on our own way. हम अपनी गवर्नमेंट अपने खुद तरीके से बना सकते थे. There were no meaning of external or internal interference. That is called the sovereign. India is a sovereign state. It means that no internal or external limitation are imposed on it. India is free to formulate its home and foreign policy and free to maintain relations with any foreign state. It means India is free to take their own decisions. Next one is socialist state. It means that the state aims at establishing a welfare society in which a wide disparity between the rich and the poor does not exist. इसका मीनिंग ये है कि भारत अब ऐसे स्टेट को एस्टेब्लिश करना चाहता है जिसमें कोई भी डिस्पैरिटी ना हो, कोई भी अंतर ना हो, रिच एंड पुअर, धनी और गरीब में कोई अंतर नहीं होना चाहिए. Man is free from exploitation by another man and social, economic and political justice is provided to all without any discrimination.
सबको बिना किसी भेदभाव के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। सोशल स्टेट का मीनिंग ये है कि अब भारत के अंदर किसी भी जाति के साथ, किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज सेक्युलर स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर मीन्स इंडिया हैज नो स्टेट रिलीजन। भारत का कोई भी अपना राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। Everyone is free to adopt any religion, to propagate any religion. हर आदमी को किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार है, किसी भी धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। स्टेट हैज इट्स नो ओन रिलीजन। स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है। ऑल रिलीजन्स विल बी इक्वली ट्रीटेड। सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको बराबर सम्मान दिया जाएगा। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक स्टेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी? डेमो प्लस क्रेसी। Rule of people. Democratic means rule of people. Now India is a democratic state in which power lies in the hands of the people. जिसमें पावर किसके पास है? अब लोगों के पास है। The government is accountable to the people. अब जो गवर्नमेंट बनेगी that is accountable to the people, वो लोगों के प्रति जिम्मेवार होगी। The people are given democratic rights and liberties. अब लोगों को प्रजातांत्रिक अधिकार भी मिलेंगे एंड लिबर्टीज और स्वतंत्रता भी मिलेगी। नेक्स्ट वन इज रिपब्लिक। इंडिया इज ए रिपब्लिक। रिपब्लिक मीन्स गणराज्य। इन ए रिपब्लिक द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसका मीनिंग ये है बेटा कि अपने देश के जो हेड हैं वो निर्वाचित होंगे, चुने जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं। दे आर इलेक्टेड पर्सन्स, वेदर इट इज प्राइम मिनिस्टर, वेदर इट इज प्रेसिडेंट। The President of India is elected indirectly by votes of the people. राष्ट्रपति को भी लोगों के द्वारा इनडायरेक्ट वे में चुना जाएगा। इसका अर्थ ये है कि इंडिया के अंदर जो भी हेड आएंगे, जो भी निर्वाचित सदस्य होंगे, वो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। राजा या महारानी की तरह उनका जो है चुनाव नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा लॉस एंड डिसेंट। नियम और डिसेंट होता है कि व्हेन some people are not in favor of that. जब कानून बनते हैं तो कुछ कानून ऐसे होते हैं जिनका लोग अपोज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डिसेंट। गवर्नमेंट मेक्स लॉस एंड इम्प्लीमेंट्स देम फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। गवर्नमेंट नियम क्यों बनाती है? लोगों के भले के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल। डू दिस लॉस फेवर ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी? क्या आपको लगता है कि जो भी नियम बनते हैं वो सारे समाज के सभी सेक्शन के फेवर में होते हैं? इफ इन केस ए सिचुएशन अराइज, अगर किसी केस में ऐसी सिचुएशन बनती है व्हेन द लॉ डज नॉट प्रोटेक्ट सर्टेन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, कानून जो है लोगों के हित में नहीं होते हैं, देन व्हाट शुड द पीपल डू? तब लोगों को क्या करना चाहिए? शुड दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द लॉस और ओबे देम पोलाइटली? क्या उनको उनके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए या फिर चुपचाप उसे मान लेना चाहिए? तो जो ये आवाज उठाई जाती है इसको बोलते हैं डिसेंट। दैट पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ दैट लॉस। लोग उस कानूनों के साथ नहीं हैं। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लॉस एंड डिसेंट, स्टडी साल्ट सत्याग्रह एंड एंटी लिक्विड एजिटेशन। इसको हम क्लियर पढ़ने के लिए, क्लियर स्टडी करने के लिए हम दो एजिटेशन लेंगे। दैट इज साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, और एंटी लिक्विड एजिटेशन, शराबबंदी। We will discuss two incidents in two different contexts before and after independence. तो हम दो किस्से लेने जा रहे हैं, पहले का और इंडिपेंडेंस के बाद का, स्वतंत्रता के बाद का। साल्ट सत्याग्रह, that was done in 1930 and this is the incident before independence. The British government imposed a tax on salt to assert her monopoly. Mahatma Gandhi decided to break this unjust law, salt law made by the British government. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने एकाधिकार को दिखाने के लिए नमक पर टैक्स लगा दिया। महात्मा गांधी ने इस अनजस्ट, इस अन्यायपूर्ण सॉल्ट लॉ को तोड़ने का फैसला किया जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। सॉल्ट के ऊपर लॉ लगाना, सॉल्ट के लॉ को लागू करना बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि सॉल्ट इज ए common thing and it's also common for a common man, and so it is not good to impose tax on that.
On 12th March 1930, with a group of 78 followers, he started the famous Dandi March to violate the salt law. कानून के नियम को तोड़ने के लिए, उसका बहिष्कार करने के लिए महात्मा गांधी 12 मार्च 1930 को अपने साथ 78 वॉलेंटियर्स को लेकर डांडी मार्च किया. On 6 April 1930, covering a distance of about 240 miles from Sabarmati to Dandi, he violated the law. उन्होंने पैदल यात्रा की 240 मील साबरमती से डांडी तक नमक कानून को उल्लंघन करने के लिए, विच मार्क द बिगनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का नाम दिया गया. Thousands of people throughout the country broke the salt law by manufacturing salt and demonstrating in front of the government salt factories. हजारों लोगों ने नमक कानून को तोड़ा. उन्होंने नमक बनाया और इसे जो है गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्री के आगे इसका प्रदर्शन किया. People from different communities joined the movement. Different communities के people ने इस मूवमेंट को ज्वाइन किया. Gradually, धीरे धीरे there was a widespread defiance of the British authority all over the India. धीरे धीरे ये सारा विरोध जो है पूरे भारत में फैल गया. एंटी लिक्वर एजिटेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद शराबबंदी विद्रोह. The protest against the liquor laws can be considered as a dissent on the grounds that it does not protect the citizen's fundamental right to health. Besides violating the directive principles that prohibited the consumption of the liquor, people were severely affected by consuming alcohol as it disturbed domestic life and often women were subjected to physical abuse. शराबबंदी, शराब के कानूनों को डिसेंट नहीं मिला, यानी कि लोगों ने अपोज किया उसको. किस कारण अपोज किया? क्योंकि ये फंडामेंटल राइट टू हेल्थ इसको अपोज करता है, प्रोटेक्ट नहीं करता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. इसके साथ साथ ही अल्कोहल का कंजम्पशन करना क्या है, ये एक बहुत बड़ी बुराई है. इसने जो है घरेलू लाइफ के साथ साथ औरतों को फिजिकल अब्यूज को भी सब्जेक्ट किया. तो इस तरह से इसका अपोज किया गया, इसका विरोध किया गया. द एजिटेशन अगेंस्ट लिक्वर इन मणिपुर वाज लेड बाय वुमेन्स एसोसिएशन नेम्ड नुपी लेन. सबसे पहले ये मणिपुर में इसके विरुद्ध विद्रोह उठा, जिसमें वुमेन एसोसिएशन का नाम था नुपी लेन. दे एजिटेटेड अगेंस्ट द सेल ऑफ चीप इलीगल लिक्वर डिस्टिल्ड फ्रॉम राइस. उन्होंने इसका विरोध किया क्योंकि ये इसकी जो है सस्ती और इलीगल लिक्वर था जो राइस से बना हुआ था. मणिपुर वेंट ड्राई इन 1991. मणिपुर 1991 में बिल्कुल सूखा गया. The reason behind the prohibition was the force of people's movement. रीजन क्या रहा? क्योंकि लोगों का आंदोलन का फोर्स था. Later on in many states, anti-liquor protest was led by women's organization. इसके बाद कई स्टेट्स में ये शराबबंदी प्रोटेस्ट चला वुमेन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. One such agitation was in the Bangta in Nellore district of Andhra Pradesh by two adult literacy program employees. These two were abused by a couple of drunkards. ये दोनों जो है couple of drunkards शराबियों के द्वारा इनको गाली दी गई थी. Women who were attending the literacy classes, औरतें जो लिटरेसी क्लासेस को अटेंड कर रही थी, outraged strongly against the incident. इस इंसिडेंट से उनको बहुत गुस्सा आया. outrage मीन्स गुस्सा आया. Armed with bamboo sticks and chili powder, attacked the shops and forced them to shut down. उन्होंने जो बम्बो स्टिक के साथ उन पर अटैक किया और मिर्च पाउडर का यूज़ करके उन्होंने उन दुकानों पर अटैक किया और उन्हें बाहर और दुकानों को शट डाउन कर दिया, बंद कर दिया. मोटिवेटेड बाय दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से प्रेरणा लेकर वुमेन ऑफ द नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट फॉर्म्ड एन एंटी लिक्वर मूवमेंट. नेल्लोर की औरतों ने भी जो है एंटी लिक्वर मूवमेंट आंदोलन चलाया. द सक्सेस ऑफ दीज टू एंटी लिक्वर मूवमेंट्स वाज द रिजल्ट ऑफ मास पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल. तो इस तरह से इन दोनों एंटी लिक्वर मूवमेंट की सफलता को देखकर काफ़ी सारे स्थानीय लोग इसमें पार्टिसिपेट करने लगे. तो इस तरह से इसे एंटी लिक्वर
एजिटेशन का विरोध किया गया। Now see the words to know. First is preamble. Preamble means प्रस्तावना, introduction. Second one is horoscope. Horoscope means जन्म पत्री, जन्म कुंडली. Svirian, Svirian means संप्रभु. Svirian means that when you are free from external and internal obstacles. जब आप पर बाहरी और आंतरिक किसी प्रकार की रुकावट ना हो, किसी प्रकार का इंटरफेरेंस ना हो. नेक्स्ट इन डिस्पैरिटी, असमानता, इनइक्वालिटी. अकाउंटेबल, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल. देन डिसेंट, मतभेद. मतभेद जब आप किसी बात पर आपकी जो है रजामंदी ना हो. एजिटेशन, व्याकुलता, बेचैनी, जिसके अंदर आपको जो चीज ठीक नहीं लगे. नेक्स्ट इज डिफाइंस. डिफाइंस मीन्स अवज्ञा, किसी बात को आप नहीं मानते हैं. मोनोपोली, एकाधिकार, जब एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, दैट इज कॉल्ड द मोनोपोली. एंड द लास्ट वन इज सिवरली. सिवरली मीन्स कठोरता से. आपने कठोरता से मतलब स्ट्रिक्टली यू डिनाइड फॉर दैट इज द सिवरली, कठोरता से. सो इन दिस वे you have seen that what is the preamble of the constitution and what is the meaning of laws and dissent. And in this we have studied about the two movements. One is Salt Satyagraha and second is anti-liquor movement. For the next till one, goodbye.